So we'll start anyway. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Nam Sankirtan Namo Sargi Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. I'm falling short of breath nowadays. I don't know what to do. Old age. So, which is the sloka I have to take today? 1.16.7, Prabhuji. Oh, you have not taken in my absence? I have a 3-day off. All right. Head should be there, Prabhu. Without head, body is useless. So 7, huh? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके 1.16.7 क्षुद्रायुषां निर्णाम अंग मर्त्यानामृतमीक्षताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युः कर्मणि क्षुद्रयुषां निर्णामंगं मर्त्यानामृतमीक्षताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युः कर्मणि क्षुद्रायुषां निर्णाम अंगं मर्त्यानामृत्यम् इच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युः कर्मणि क्षुद्र अत्यंत छोटी आयुषम आयु वाले निर्णाम मनुष्यों का अंग हे शुद्ध गोस्वामी मर्त्यानाम मरने वालों का रितम शाश्वत जीवन इच्छताम चाहने वालों का यह यहाँ उपहूतः उपस्थित होने के लिए बुलाया गया भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु के नियंत्रक यमराज शामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों को। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच सकते हैं। सो purport, if anyone of you can read. তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ কি যায়। জীব যতই নিম্নতর পশু জীবন থেকে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মনুষ্য জীবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে, ততই সে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুল হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা এবং রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হায়, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ এতই নিষ্ঠুর যে তিনি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত রেহাই দেন না। সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যমরাজ যখন ডাক দেন তখন তাদেরও মৃত্যুর শিকার হতে হয়। মৃত্যুকে জয় করার কথা বলে আর কি হবে? কেউই এক মুহূর্তের জন্য কারো স্বল্প আয়ু বাড়িয়ে নিতে পারে না। যমরাজ এই নিষ্ঠুর সংহারের পন্থা তখনই কেবল রোধ করা যায় যখন ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার জন্য তাকে আহ্বান করা হয়। যমরাজ ভগবানের মহান ভক্ত এবং ভগবানের প্রেমময় সেবায় সর্বদা যুক্ত। ভগবত ভক্তি চর্চার সতত নিয়োজিত শুদ্ধ ভক্তরা যখন তাকে কীর্তনে এবং যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। তাই প্রমুখ মহর্ষিরা নৈমিষারণ্যের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যমরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা মরতে চায় না তাদের জন্য এটাই ছিল মঙ্গলপ্রদ। হরে কৃষ্ণ। ओम ज्ञान विभ्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुष्मन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्तकजन गौरंगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय विष्णु जयपता कथामनिधि नामने नमाचार्य पादाय नेताय कृपा प्रदाय गौरकथामदाय नगरग्रामधारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय विष्णु भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सुदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद। सो क्षुद्रयुषां नृणामंगम मृत्यानां मृत्युम इच्छतां इहोपभूतो भगवान मृत्युषा मित्र कर्मणि। तो सोनका गोस्वामी कहते हैं, हे गुरुदेव, मनुष्य में बहुत सारे ऐसे हैं जो मुक्ति को पाना चाहते हैं। अब ये मुक्ति कई प्रकार की होती है। 5 तो आपको मालूम होगा: सारूप्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारिष्टि एंड सायुज्य। लेकिन और मुक्ति क्या होती है? बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरे शरीर को कष्ट ना हो। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए भगवान की लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो जो है हेतु की भक्ति नहीं है। उसमें मेरा फायदा है तो मैं अपने फायदे के लिए भक्ति कर रहा हूं, या जीवन में कोई और परेशानी आ जाए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये उच्च कोटि के भक्त नहीं है। ये भक्त है, भगवान से पाना चाहते हैं, भगवान से मदद चाहते हैं। ये भक्त उच्च कोटि के भक्त नहीं है। भक्त वही है जो अपनी चिंता ना करे, अपनी चिंता ना करे, सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाए। और ऐसा भक्त मिलना दुर्लभ ही बहुत दुर्लभ है। हम भी हैं, हमारे अनेक ध्याय होंगे कि भगवान अच्छे से नौकरी रहे, सेहत ठीक रहे, घर हो लेकिन सफाई ना करनी पड़े, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा घर हो, साउंड प्रूफ हो, जहां डस्ट भी ना आ सके, तो फिर मजा आ जाए। तो हम भगवान की पूजा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग? मृत्यु, यमराज को बुला देते हैं। और जब मृत्यु को बुला देते हैं, जब यमराज को बुला देते हैं, तो मृत्यु उनको कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे पहले क्या कहते हैं? जो समय है उसकी कन्या का नाम है काल। तो जो समय उसको बोलता है काल को, तो वो क्या कहते हैं? आदमी के पहले पैर पकड़ लेता, पैर पकड़ लेता। और जब आदमी पैर पकड़ लेता तो आदमी हिलडुल नहीं सकता है। और तब जाके जो है यमराज के गण आते हैं और बड़ी आसानी से उसकी आत्मा को लेके जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यम की पूजा इसलिए करते हैं ताकि मृत्यु ना आए। लेकिन यहां तो अगर जन्म है तो मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात अगर हम सही तरीके से योगाभ्यास ना कर सके तो फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी चैतर्य साहने यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाए पाहे मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल मते। कहते हैं कि शंकराचार्य ने जब ये लिखा, ये स्तंज लिखा भज गोविंदम, तो कहते हैं दरअसल में वो तो कृष्ण के पुजारी नहीं थे, वो तो निर्विशेषवादी थे। तो बोले गए जो उनका जो शिष्य था उसका नाम था गोविंद। और ये गोविंद जो था इधर उधर बातें करता रहता था, तो इसलिए कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। हे गोविंद, जो उनका शिष्य था, अरे भजन करो, भजन करो, भजन करो। लेकिन हम तो कहते हैं भाई तो गोविंद का नाम ले लेते हैं। शंकराचार्य भगवान का अनन्य भक्त, तो किस प्रकार से उन्होंने गोविंद का नाम रखा और लोगों को शिक्षा दी कि गोविंद को ही भजना चाहिए, गोविंद को ही भजना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। 3 बार कह रहे हैं। तो चाहे अपने शिष्य को कह रहे हो या शिष्य के द्वारा भगवान के लिए कह रहे हो, लेकिन जो शिक्षा है वो बिल्कुल सही शिक्षा है। कहते हैं जो MSc वाले हों, PhD वाले हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नेता हो, भिखारी हो, राजा हो, रंग हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। किसी को नहीं छोड़ती है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम।
शेषा अस्तावरणाम इच्छन्ति किम आश्चर्यम परम। ये यक्ष प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो यक्ष ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ये बताइए दुनिया में आश्चर्य चीज कैसी है। आज आप बाजार में जाएं तो देखें बहुत सारे लोग बिना मास्क के हैं, बिना मास्क के। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या बात करते हैं। और जिनको होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें नहीं होगा, बाकी तो लोग ऐसे ही हैं। हम तो विशिष्ट हैं, हम तो विशिष्ट धातु से बनने में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। स्पेशल है, स्पेशल। तो इसी प्रकार सबको मृत्यु आएगी, मेरे को मृत्यु नहीं आएगी। मैं जो यम पास में नहीं जाऊंगा। तो भक्ति, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, लेकिन अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति विशेष वैष्णव करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मरने में आनंद, मरने से ही तो मिले पूरे परमानंद। जो वैष्णव कहते हैं कि जब तक कि मेरी देह है ना, परमात्मा हृदय में है, मैं अवलोकन नहीं कर पाता हूं। एक उर्दू का कपलेट है, गले में लटकाई या तस्वीर यार, गले में लटकाई या तस्वीर यार, जब मर्जी की गर्दन झुकाई और दर्शन कर लिए। बहुत सारे लोग अपने पति या पत्नी की गले में या पर्स में जो है वो बटों में रख के चलते हैं। क्यों? जब मर्जी आया देख लो, खुश हो जाओ। तो साधु संत कहते हैं परमात्मा है, हमें मालूम है, लेकिन परमात्मा के दीदार नहीं होते हैं। दीदार तो मेरे भगवान कृष्ण के होंगे। जब उद्धव महाराज भगवान के कहने पर वृंदावन गए और कहा ये गोपियां पागल हो गई, उनको समझाओ तुम। तो उद्धव जी जाते और कहते हैं, उद्धव जी ज्ञानी थे, बृहस्पति के जो थे शिष्य थे, बहुत बड़े ज्ञानी। तो इन लड़कियों को बोलता है, गोपियों को बोलता है, तुम पागल हो, भगवान सर्वत्र हैं, अपने हृदय में भगवान को देखो। तो राधा जी कहती हैं, मेरा मन देख सकता है लेकिन मेरी आंखें नहीं देख पाती हैं। मैं अपनी आंखों से अपने वक्षस्थल को चीर कर परमात्मा को नहीं देख पाता हूं। मैं इन निगोड़ी आंखों के क्या करूं। मैंने जब एक श्याम सुंदर के दर्शन कर लिए, अब मुझे किसी का दर्शन नहीं पाते, चाहे वो अंदर हो बाहर हो। और जब रासलीला हुई, गोपियों को गुमान हुआ कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, तो कृष्ण जो थे राधा जी को लेकर कहीं चले गए। अब सब जो लड़कियां थी वो राधा जी के लगे बेमुश करने लगी, अरे वो कितनी भाग्यशाली है, हम कितने निर्भागी हैं। और फिर आगे जब राधा जी देखती है तो क्या देखती है, भगवान उसको हाथ में उठा के चल रहे हैं। तो उनको भी बड़ा गर्वान्वित हुआ कि त्रिलोकनाथ मुझे लेके चल रहे हैं। और भगवान ने कहा अहंकार, अहंकार नहीं, और फौरन वहां से भी गायब हो गए। अब राधा अकेले रह के रोने लगी, तब तक सखी आई, बोलो कहाँ है कहना, कहाँ है कहना, बोला मुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन ढूंढो, यही कहीं होगा, कहीं नहीं जा सकता है। अलग अलग जैसे मिलिट्री में होते हैं ना, कॉमिंग, उसको बोलते कॉमिंग, आई डोंट नो कॉमिंग। तो कॉमिंग करने लगे कि भगवान को पकड़ेंगे। तो एक जगह उन्होंने क्या देखा, नारायण है, चतुर्भुज में नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म है, और खड़े हैं। तो गोपियों ने प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आपने गोविंद को देखा? और नारायण ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। तब बहुत देर हो गई, सब लोग जो हैं राधा जी के पास आए, रोने लगे, गोविंद कहीं नहीं मिला। बोला अच्छा, बोले लेकिन नारायण मिला। बोले अच्छा नारायण मिला, किधर है? बोले उधर है, चलो। तो जब वहां गए तो भगवान के चारों हाथ, विष्णु के हाथ। जैसे ही राधा ने देखा, भगवान के 2 हाथ गायब हो गए, डर के मारे। भाई प्रेयसी से कौन नहीं डरेगा। भगवान को पकड़ लिया। तो यह है, हमारे साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। भगवान ने अपने प्रेयसियों को छोड़ा, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, हमारे हृदय तो परमात्मा है, मेरा हृदय तो साफ है। इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है, सब बोलते हैं भाई मेरे हृदय तो साफ है। मैंने कहा नहीं भाई, साफ नहीं, आपका हृदय जो है लाल है, उसके अंदर बहुत सारा खून है।
नहीं, हमारे हृदय में कोई मैल नहीं है। मन का अच्छा, जितने लोगों का ऑपरेशन हुए, चाहे वो बूचर हो, उसका ऑपरेशन हुआ, उसका हृदय बिल्कुल साफ मिला, कुछ नहीं था उसके अंदर, साफ था। लेकिन कहते नहीं, हम तो साफ सुथरे हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। अरे भाई, अगर गलत काम नहीं करते हो तो यहां मनुष्य शरीर कैसे मिला है? अगर हम पापी नहीं है तो इस धरती में हम क्या कर रहे हैं? जिस दिन हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, भगवान हमको बुला लेंगे। और जब हम इस देह में है तो मान के चलो, आपको बुरा लगेगा, हम पापी हैं। और पापी कैसे है? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये तो प्रपात की कृपा है, वैष्णव की कृपा है कि भगवान के नाम का आसरा ले रखा है। पूर्णतः नहीं, आंशिक भी है तो ले रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं? कहते कुछ और करते कुछ है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया थी, काफी वृद्ध हो चुकी थी। उसका आजीविका का सहारा था जंगल में जाए, लकड़ियां काटे, शहर में जाए, लकड़ियां बेचे, 2 जून की रोटी खाए। फिर ये करते करते वो यम को याद करने लगी, हे यम, तू कहां मर गया है? मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। तो जब उसने कई दिन प्रार्थना की, एक दिन बुढ़िया जी जंगल में गई और उस दिन उन्होंने बहुत सारी लकड़ी काटी। और जब लकड़ी काटी तो लकड़ी का जो गट्ठा था उठा नहीं पाई, बहुत कुछ उठा नहीं पाई। उसने ऊपर हाथ किया, बोलने लगा, हे यमराज, तू किधर है? मुझे क्यों नहीं लेके जाता? और फौरन यमराज आ गए। बोला, माता जी तब दासो उसमें क्या सेवा करूं? और बुढ़िया डरने लगी। बोला, बेटा अब तुम आ गए हो ना, तो ये जो ये उसका लकड़ी का जो गट्ठर है ना, बेटे मेरे सिर में डाल दो और तुम चले जाओ। तुमसे क्यों मुझे अपना काम कराना? तो हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ नहीं। अगर मेरे दरवाजे पे भगवान आए कि विजय माधव चलो, मैं बोलता 5 मिनट 10 मिनट। पता नहीं आप लोगों ने कभी चंदूलाल की कहानी सुनी नहीं सुनी? तो हम भी अगर भगवान आ जाए, साक्षात आज भगवान आ जाए, तो हम कहेंगे थोड़ा सा, बस जरा सा। कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है भक्तों को छोड़कर। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा। प्रभुपाद जी अंतिम समय कहा, कोई दवादारी की जरूरत नहीं है, कोई बात बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाना है और काम भी तो करने मेरे को, क्या यहीं बैठा रहूं क्या? अब तुम सब समझदार हो। उन्होंने नहीं कहा चांदूलाल का कहानी, चांदूलाल का कहानी क्या है? बहुत लंबी कहानी। अच्छा चलो चलो बता देता हूं। एक बार एक चंदूलाल थे, भगवान के भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। शाम सुबह भक्ति करते थे। भक्ति करते करते भगवान ने नारद को कहा कि जाओ हे नारद, ये चंदूलाल को ना तुम सशरीर वापस लेके आओ। तो नारद जी गए, चंदूलाल का दरवाजा खटकाया। चंदूलाल जी नारद को जानते थे, उनके पैरों में गिरे, उनके पद प्रक्षालन किए और कहने लगे आज्ञा। बोला भगवान कृष्ण ने बुलाया है। बोला ओ, मैं तो कब से तैयार हूं, लेकिन मेरे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए, ये ग्रेजुएशन हो जाए, इसकी नौकरी हो जाए, फिर चलूंगा। क्यों नहीं चलूंगा, आप कुछ साल के बाद आए। नारद लगा ठीक है, भगवान का आदेश है। नारद जी आए फिर कई साल के बाद। बोले चंदूलाल तैयार हो? अरे साहब मैं तो कब का तैयार बैठा हूं, बस लड़की की शादी हो जाए, बस शादी हो जाए, मेरा झंझट छूटे, मैं चलूं। कुछ देर के बाद आना। तो नारद जी फिर कुछ साल के बाद आए। बोला चंदूलाल अब? बोला अब क्या, ये देखो ना छोटा सा नाती है, ये अभी तुम्हें दादा भी नहीं बोल पाया, इसको दादा तो बोले दो। आऊंगा ना, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो यहां हूं, मैं तो भगवान के पास आऊंगा, वही तो प्रार्थना करता हूं। तो होते करते क्या हुआ, इस बार नारद ने कहा यार ये जो है ना ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं कुछ देर के बाद जाता हूं। जब आए वहां चंदूलाल नहीं था। चंदूलाल के जगह एक कुत्ता था, और जैसे नारद को देखा भाव 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 करने लगा। तो नारायण ने कहा तुम कौन? बोला कौन? मैं चंदूलाल। बोले यहां क्या करूं? बोले घर की रखवाली कर रहा हूं। अरे भाई मैं वहां चलूं, मेरे घर की रखवाली कौन करेगा? लड़का ऑफिस चला जाता है,
बहू भी ऑफिस चली जाती है, नाती स्कूल चले जाता है, घर की रखवाली कौन करेगी? चोरी हो गई तो, हाँ? तो नारद ने कहा ठीक है भाई, तू रखवाली कर। तो क्या मैं कहने का मकसद था, अगर हमको भी जब मौका मिले ना, हम यही कहेंगे बस थोड़ा सा, बस जरा सा, एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, बस जरा सा, जरा सा। कोई तैयार नहीं है। और जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से तो मिले पूरे परमानंद। और देखिए मृत्यु, मृत्यु से क्या होता है? आदमी मर जाता है, बताओ क्या होता है? फिर नई बीवी, नए माँ बाप, नए बच्चे, नया घर, नया देश, नई एजुकेशन, सब चीज़ नई। तो लोग मृत्यु से घबराते क्यों हैं? जब चीज सब चीज़ नया मिलना है, एक दूसरे से शकल देके जब फेडअप हो गया तो भगवान बोला ठीक है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से मजे करो ना। तो फिर यहाँ इसी जन्म में मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना का कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के तैयार है। अगर हम सुबह चांद करते हैं, थोड़ा सिर दर्द हो तो भगवान कहते हैं हे भगवान थोड़ा सा ठीक कर लेना, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कोई हो, भगवान से देख लेना। भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर हो गए कि हमारी आज्ञा का पालन कीजिए आप। चलो आज एक ही श्लोक लूंगा, एक आपको कथा और सुना दूं कि एक भक्त था, भगवान की करता था सेवा, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता था। तब अपने गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज से कहा मेरे दिल में भगवान की सेवा की लालसा है, लेकिन मेरे प्रारब्ध मुझे पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो गुरुदेव कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि मेरा एक पैसा खर्च ना हो और मैं भगवान की भक्ति भी कर लूं। पैसे नहीं खर्च होना चाहिए, कहता ही नहीं। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो मानसिक भक्ति कर लो, मन में ही भगवान के लिए मंदिर बनाओ, मन में भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, मन में ही भगवान को माल्यार्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, लोगों को जिमाओ, खिलाओ लोगों को मन से। इसने कहा गुरु महाराज आप सत सत नमन, आप हैं असली गुरु। इससे आने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। एक बात गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मुझे एक लेटर मिला है। गुरु महाराज मेरे से कहते हैं कि मेरे को एक लेटर मिला है। मैंने कहा गुरु महाराज किसका? बोले ये नहीं मालूम किसका है, लेकिन उस लेटर में लिखा है कि जयपताका स्वामी महाराज अगर आप असली गुरु हैं, आप असली गुरु हैं तो बताओ मैं कहां हूं। तो गुरु महाराज ने कहा अरे मैं इंसान हूं भाई, मैं भगवान की तरह ओमनीपोटेंट ओमनिशियंट नहीं हूं। तू कहीं पता लिखे, कुछ मुझे वो दे तो मैं तेरे पास आऊं, किसी को भेजूंगा, लेकिन मैं कहां हूं? बोले मैं क्या बोलूं उसको, मैं कहां हूं? तो यहीं कहीं बकरी की तरह कहीं घूम रहा होगा। तो ऐसे भी गुरु होते हैं। अगर असली गुरु है तो ढूंढ मैं कहां हूं। ये दीक्षित भक्ति की बात करूं मैं, क्या करें? तो ठीक इसी प्रकार इस भक्ति ने जो है गुरु की आज्ञा का सिरोधार्य किया। बस अब उसने क्या किया, कुछ ना करे, मन ही मन भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, खूब भंडारा करे, लोगों को कीर्तन के लिए बुलाए, सब मन में करेगा, कुछ नहीं, पैसे नहीं खर्च करने। करता गया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल गुजर गए मानसिक सेवा में। एक दिन उसके दिल में आया यार कई दिन से भगवान को खीर नहीं खिलाई, आज मैं अपने हाथ से भगवान को खीर खिलाऊंगा। तो मन से बाजार जाता है, 1 किलो चीनी लेके आता है, मन से बाजार जाता है 200 ग्राम चावल लेके आता है, मन से बाजार जाता है 2 लीटर जो है दूध लेके आता है, और उसके बाद जो है स्टोव जला करके मन ही मन में जो है वो खीर बन रही है। आज जब मन में संतोष था, खीर बन रही थी, उसने पूरा 1 किलो चीनी जो है दाल में डाल दिया, उसमें डाल दिया, दूध में डाल दिया,
उसे ख्याल आया कि ओ बाप रे बाप बहुत मीठा हो जाएगा, वो क्या क्या अपने हाथों से चीनी निकालने लगा। भगवान का बहुत गुस्सा आया कि बेवकूफ, 12 साल से तो मानसिक पूजा कर रहा है, चीनी कहाँ गिरी? चीनी तो गिरी नहीं है, तो चीनी निकाल रहा। और उसको भगवान के दर्शन हो गए। देखिए, गुरु का जो आज्ञा मानेगा, गुरु के कथन पे चलेगा, भगवान के दर्शन तो होंगे ही। याद है ना, गुरु मिले बंधन छूटे। गुरु मिलेंगे तभी तो बंधन छूटते, ऐसा थोड़ी। लेकिन हमारी जो भक्ति है बस सुख सुविधा के लिए। जिस दिन जो है घर में सत्संग बुलाया, लोग आए और आपके दोनों तीनों एसी खराब हो गई, आप रोने लगेंगे। क्यों? आपको भगवान की भक्ति से ज्यादा सुख सुविधाओं का ध्यान है। सुख सुविधाओं का ध्यान है। जैसे मैं बहुत कहता हूं, अब हमें जो है यात्रा के लिए जाना है। यात्रा जाने से पहले फ्लैट बुक, एसी बुक, कार बुक, कोई परेशानी ना हो। बस सीधे यहां से गए प्लेन में, वहां से उतरे, सीधा जो है मायापुर पहुंच गए। भगवान के दिन, भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। और तब हम कहते हैं इस हालत में हमको तो भगवान मिलेंगे। अरे जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक यात्रा उस परेशानी को नहीं सहेंगे, कहां से भगवान मिलेंगे? हम लोग सब आराम से, बस सब कुछ आराम से हो जाए। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? कि जब मैं मरूं। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे अगल बगल में सब भक्त बैठे हों और हरिनाम कीर्तन कर रहे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आदत वो है तो आपकी। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो 5 मिनट का जाप करेंगे और भक्त लोग आपके सिराने बैठ कर जो है पूरे 5-10 दिन जो है कीर्तन करेंगे। मुझे कुछ नहीं करना, औरों को करना ना। इच्छा तो क्या है? इच्छा होने से क्या होता है? पहले इच्छा, पहले चाह, तब राह। तो राह सही होनी चाहिए, चाह से कुछ नहीं होता है। चाह और राह, राह और चाह। तो इस प्रकार हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं, हम कर क्या पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। क्यों? कि हमें जो है लालसा है, अपने सुख सुविधा की लालसा है। हम प्रवचन करते हैं ताकि लोग बोलें अरे ये कितना अच्छा प्रवचन करता है। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, भगवान तो दिल में है ना। अहंकार से बात कर रहा है, ये प्रेम से बात कर रहा है। और सब लोग अहंकार में। और हम बहुत सच बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं। क्या सच? कि प्रभु मैंने आज 40 साल से चाय नहीं पी। तो किसी पे कोई एहसान किया? किसी पे कोई एहसान है? नहीं पी तो नहीं पी। लेकिन ना दिखाने के लिए, क्या दिखा रहे हैं? देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, या इतने साल से मैंने ये नहीं किया, इतने साल से ये नहीं किया, मैं पिछले 40 साल से भक्ति कर रहा हूं। वाह वाह वाह। तो क्या है, हम कभी कभी अपने ईगो में, अपने अहंकार में बहुत सारी चीजें ऐसे बोल जाते हैं। और यही अहंकार, ये हमारे जो सद्गुण हैं, ये हमारे अहंकार का भोजन बनता है, भोजन बनता है। एक बार हमारी एक दोस्त की बिटिया थी, कई साल के बाद हमें मिली। हम क्लास में बात कर रहे थे, तो उसने कहा अंकल, अंकल ही बोलती थी मेरे को, एक प्रश्न है मेरा। मैंने कहा बोलो बेटे क्या प्रश्न है? बोलो हमारे स्कूल में ना सारे कार्मी लोग हैं, सारे कार्मी बच्चे हैं, हमारा जीवन कैसे बीतेगा? मैंने कहा भैया उनके साथ रहो। बोले कैसे? मैंने कहा अपने पापा से पूछो। बोले क्या पूछूं? मैंने उसको बोलो पहले कार्मी था कि भक्त था? सबसे बिगड़ैल था यह दुनिया में, और आज भक्त बन गया। तो तुम भी ये मत कहो कि उस सत्संग में जाकर के तुम्हारा कोई ऊंच नीच हो जाए। नहीं होगा। अगर तुम दृढ़ हो तो तुम उनको भक्त बनाओगे। तो फिर उसके पिताजी में बैठे थे, बोला प्रभु खबरदार जो मेरे बच्चों के मेरे पास के बारे में कुछ बताए तो। मैंने कहा क्यों? बोलो मैं घर में नहीं रखने देंगे मेरे को। तो कहने का मतलब क्या है, हम समझते हम तो भक्त हैं, ये तो इस गुरु के भक्त हैं,
इस संप्रदाय के हैं, ये ऐसा है नहीं प्रभु। और जीवे दया, हम क्या करते हैं, जीवों पे दया नहीं करते हैं। और जब नाम में रुचि होगी तो जीवों पे दया होगी, और अगर दया नहीं है तो नाम में रुचि नहीं है, आप चाहे कितने राउंड क्यों ना कर लें, ये सब साइमल्टेनियसली है। और जब दया हो जाएगी, नाम में रुचि होगी, तो वैष्णव अपने आप आपके सामने आएंगे, अपने आप आपके सामने आएंगे और आपको सेवा का मौका देंगे। 1 2 3 नहीं, हजारों एग्जाम्पल। लेकिन हम कथाएं अच्छी करते हैं, अच्छा सुनते हैं, इंप्लीमेंटेशन करने में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बस ये विडंबना है हमारी, क्योंकि अपने आप को समझ बैठे हम सबसे अलग हैं। हम सबसे अलग नहीं हैं, हम समाज में ही एक हैं। और समाज सुधारना खाली समाज सुधारों का काम नहीं, बल्कि हमारा भी काम है, और हमें वही काम करना है। अगर गुरु महाराज को खुश करना है, शिल प्रभुपाद को खुश करना है, डिस्प्ले सक्सेस में खुश करना है, तो हमें वही काम करना पड़ेगा। यह नहीं कि ये अछूत है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी संस्कृति में जो आदमी 60 साल से ऊपर हो जाए, चाहे वो अछूत क्यों ना हो, उसके पैर छुए जाते हैं। अछूत के भी पैर छुए जाते हैं अगर उसने 60 साल की उम्र की देहली पार कर ली हो। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। किसने बताया, किसको बताया, किसको मालूम नहीं है। अब तो हम सेग्रीगेशन में आ गए कि मेरा अपना ग्रुप, दैट्स इट, किससे कोई लेना देना नहीं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और इसलिए हिंड्रेंस हो जाती है भगवत धाम में जाने के, भगवत को पाने के। तो आज ये समाप्त करते हैं, कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं। भगवान की सेवा क्यों? ताकि मृत्यु से मुक्ति मिले, शाश्वत जीवन प्राप्त करने की इच्छुक है, कि ताकि कोई परेशानी न हो, कोई परेशानी न हो। और उनको वैकुंठ मिलता है। कौन सा वैकुंठ? हरिधाम के ऊपर वाला वैकुंठ नहीं, इस संसार में भी वैकुंठ हैं। तो जो बड़े अच्छे भक्त होते हैं, कभी कभी उनको उस वैकुंठ में जाने का मौका मिल जाता है, और लेकिन फिर से नीचे आ जाते हैं। असली वाले वैकुंठ नहीं, जो उसकी प्रतिलिपि है, जो वैकुंठ इस मटेरियल संसार में है। भगवान से आग्रह किया माता ने कि देखिए, लोग तो वैकुंठ जा नहीं पाएंगे, तो उनको कैसे मालूम वैकुंठ कैसा है? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो संसार में वैकुंठ बना लेता हूँ, जो लोग यहाँ आएंगे अगर उनको अच्छा लगा, वो भक्ति करने लगे, तो मैं उनको ऊपर लेके जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग जो शांत रस वाले हैं, जो मृत्यु से बचना चाहते हैं, दुखों से बढ़ना चाहते हैं, परेशानियों से बढ़ना चाहते हैं, कभी कभी स्वर्ग और कभी कभी ये वाले वैकुंठ में उनको जाने का मौका मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए तो वो तद्धाम परम मम ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, वहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, हम तब उस धाम में जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, किसी भय से अगर हम भगवान की सेवा करने लगे तो भगवान की सेवा होगी, लेकिन हमको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अहतुकी अप्रतिहता, बस मुझे भगवान की सेवा करनी है, मेरे चाहे सिर में दर्द हो, चाहे दांत में दर्द हो, चाहे कुछ हो जाए, भगवान की सेवा करनी है। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत है कि घर में कोई सूतिक और पातिक होता है तो भगवान की पूजा 21 दिन के लिए बंद, क्योंकि बात है, चाहे सूतिक हो या पातिक हो, यानी किसी बच्चे का जन्म हो या किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, सबसे पहले दरवाजा टेम्पल बंद। ये कोई भक्ति हुई? भक्ति तो अहेतुकी है, भगवान की सेवा करनी है। जिसके साथ जो हुआ, हमारे साथ जो होगा, हमारे कर्म में प्रारब्ध है, उसमें भगवान ने क्या दोष? हमने मांगा, हमने संचय किया, लेकिन दरवाजे बंद। क्या किया जाए? तो हमें अहेतुकी भक्ति करनी है, जीवन में कुछ भी हो जाए। हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, शास्त्रों का अध्ययन और अपने मित्रों से, भक्तों से परस्पर विमर्श, तब जाके हम भगवान
में रुचि ले सकते हैं और भगवान हम में रुचि ले सकते हैं। तो इसके साथ ही वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा।